Hello students, we are going to start exercise 1.6. In this exercise, we will study truth table. In this video, we will learn how to prepare truth table, which is question number 1. In next video, we will learn concept of tautology, contradiction and contingency, which is question number 2, 3, 4, 5, and concept of logical equivalence, which is question number 6 and 7. Okay. To find truth value of statement patterns, we must know how to prepare the truth tables. While preparing the truth table, the some points should be taken into account. First point, if a statement pattern contains two statements. If a statement pattern contains two statements P and Q. P and Q. Then truth table of statement pattern will have 4 rows. Similarly, if a statement pattern contains 3 statements, that is P, Q and R, then the truth table of the statement pattern will have 8 rows. How many rows? If statement pattern contains 3 statements, then truth table of the statement pattern will have 8 rows, and if statement pattern contains 2 statements, then truth table of the statement pattern will have 4 rows. Okay? In simple way, अगर स्टेटमेंट पैटर्न में सिर्फ 2 स्टेटमेंट होगा, किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न में अगर सिर्फ 2 स्टेटमेंट होगा P एंड Q, तो P में हमें एंट्री क्या लेना है? कॉलम P में हमें कौन कौन सी एंट्री लेना है? T, T, F, F, और Q में कौन सा एंट्री लेना है? T, F, T, F. ओके, 2 स्टेटमेंट के लिए P में एंट्री होगा T, T, F, F और Q में एंट्री होगा T, F, T, F. एंड फॉर 3 स्टेटमेंट, अगर 3 स्टेटमेंट है तो P में एंट्री होगा T, 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 F, 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 F. Q में एंट्री होगा T, T, F, F, T, T, F, F. R में एंट्री होगा T, F, T, F, T, F, T, F. ओके, 2 स्टेटमेंट के लिए 4 रो होगा और 3 स्टेटमेंट के लिए 8 रो होगा. ओके स्टूडेंट्स, all of you know that these connectives, conjunction which is used for and, but, while, etc. Disjunction used for either or. Implication used for if, then. Double implication used for if and only if, and negation for not. Okay, for preparing truth table, you must know some rules for conjunction, disjunction, implication and double implication. कंजंक्शन के लिए रूल क्या होगा? ये बोथ द स्टेटमेंट, ये बोथ द स्टेटमेंट है ट्रुथ वैल्यू T, देन इट इज T. ये बोथ द स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू T, then it is T. In all other cases, it is F. Okay,
For disjunction, if both the statement have truth value f, then it is f. In all other cases, it becomes t. Okay. For implication, if first statement have truth value t and second statement have truth value f, then it is f, and in all other cases it becomes t. Okay. And for double implication, if both the statement have same truth value, that is t or f. If both the statement have same truth value, that is t or f, then it is t. In all other cases it becomes f. Okay. Now for conjunction, if both are t, then t. For disjunction, if both the statement have truth value f, then it is f. For implication, if first statement have truth value t, second statement have truth value f, then it is f. For double implication, if both the statement have same truth value, that is t or f, then it is t. Okay. Now going to start exercise question number 1 from exercise 1.6. okay. Students, question number 1 is prepare truth table. Okay. Question number 2 from question number 1. This statement is called as statement pattern. Now look here, this statement pattern contain statement p, q and number of connectives: negation, disjunction, conjunction, disjunction. Okay. Such type of statements are known as statement pattern. Okay. Now in this statement pattern टोटल कितने टाइप के स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट पैटर्न में कितने टाइप के टोटल स्टेटमेंट है? ओनली 2 टाइप, पी एंड क्यू. वो निगेशन पी होगा या निगेशन क्यू होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है. हमें यहाँ इस स्टेटमेंट पैटर्न में ओनली 2 टाइप के स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू. ओके. अब 2 स्टेटमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 4. 1 2 3 4. और 2 स्टेटमेंट के लिए पी में एंट्री क्या होगा? टी एफ. क्यू में एंट्री क्या होगा? टी एफ ओके. नाउ अब इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है, जितने टाइप के स्टेटमेंट है उनके लिए सेपरेट कॉलम बनाना है. फिर हमें चेक करना है कि किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट में निगेशन है क्या. तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट में निगेशन है, निगेशन पी, निगेशन क्यू. तो उसके लिए भी हमें सेपरेट कॉलम फॉर्म करना होगा. जैसे मैथ्स का रूल हमें पता है, कोई भी सम सॉल्व करने, कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ब्रैकेट देखते हैं. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितने? 2 ब्रैकेट्स. तो फर्स्ट ब्रैकेट ये, इस ब्रैकेट के लिए निगेशन पी, डिसजंक्शन क्यू, इसके लिए एक कॉलम आएगा. सेकंड ब्रैकेट कौन सा है? निगेशन पी, डिसजंक्शन, निगेशन क्यू, इसके लिए एक कॉलम आएगा. ओके. और एंड में दोनों भी ब्रैकेट को कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव कंजंक्शन, उसके लिए एक लास्ट फाइनल आंसर के लिए कॉलम आएगा. ओके. फिर से मैं बताता हूँ, जितने भी टाइप के स्टेटमेंट होंगे उनके लिए पहले कॉलम फॉर्म करना है. फिर हमें चेक करना है
इंडिविजुअल स्टेटमेंट पे अगर निगेशन है तो उनके लिए एक सेपरेट कॉलम फॉर्म करना है, फिर नंबर ऑफ ब्रैकेट के अकॉर्डिंग कॉलम्स फॉर्म करना है। ओके, और जो लास्ट कॉलम होगा वो होल स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम होगा। ओके, तो निगेशन ऑफ पी, negation of p means negation of first column, negation of t becomes f, negation of t is f. Okay, negation of f is t, negation of f is t. इन सिमिलर वे इस कॉलम में हमें q का निगेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो निगेशन ऑफ t f, ओके, negation of f is t, negation of t is f and negation of f is t. ओके, अब हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला निगेशन p डिजंक्शन q। कौन से दो कॉलम के बीच में डिजंक्शन यूज हुआ है, निगेशन p थर्ड, कॉलम नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर सेकंड के बीच में हमने कौन सा कनेक्टिव यूज किया हुआ है, डिजंक्शन का। डिजंक्शन का रूल क्या है, ये बोथ द स्टेटमेंट है ट्रुथ वैल्यू f देन इट इज f। तो यहाँ पे जो सेकेंड रो है, कॉलम नंबर सेकेंड एंड कॉलम नंबर थर्ड के बीच में हमें डिसजंक्शन अप्लाई करना है। ओके, डिसजंक्शन के लिए हमें ये देखना है दोनों भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू अगर f होगा तो f हमें राइट डाउन करना है और बाकी के एंट्रीज में हमें t राइट डाउन करना है। तो सेकेंड रो में दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, f, तो यहाँ पे f राइट डाउन कर देना है। ओके, फर्स्ट रो में दोनों f नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ रो में भी दोनों f नहीं, तो ऑल in all other cases it becomes t. ओके, अब नेक्स्ट ब्रैकेट निगेशन p डिसजंक्शन निगेशन q मीन्स कौन कौन सा ब्रैकेट, कौन कौन सा कॉलम हमें कंसिडर करना है, कॉलम नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर फोर्थ के बीच में हमें डिसजंक्शन अप्लाई करना है। ओके, अगेन डिसजंक्शन आया है और हमें पता है डिसजंक्शन का रूल क्या होता है, अगर दोनों भी फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा। तो फर्स्ट रो में दोनों फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स राइट डाउन कर देना है। सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो में दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो वहां पे क्या आएगा, ट्रू। ओके, नाउ लास्ट होल स्टेटमेंट फाइनल आंसर के लिए एक लास्ट कॉलम प्रिपेयर किया है। अब दोनों ब्रैकेट को हमने कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव कंजंक्शन, और कंजंक्शन का रूल क्या होता है, if both the statement have truth value t then it is t, otherwise false। ओके, तो चेक करना है कॉलम नंबर फिफ्थ और सिक्स के बीच में हमें कंजंक्शन, सॉरी, कॉलम नंबर फिफ्थ और सिक्स के बीच में हमें कंजंक्शन अप्लाई करना। ओके, कंजंक्शन के दोनों टी होना चाहिए, फर्स्ट रो में दोनों टी नहीं है, सेकेंड रो में भी नहीं है, बट थर्ड रो एंड फोर्थ रो में दोनों भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी है, तो यहाँ पे थर्ड रो और फोर्थ रो में टी आएगा और अदर एंट्रीज में हमें क्या लिखना है, एफ। ओके स्टूडेंट्स, मे बी थोड़ा तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने, थ्री कनेक्टिव्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने, थ्री स्टेटमेंट्स, पी क्यू आर। ओके, टोटल टाइप कितने स्टेटमेंट के फोर्थ में, थ्री स्टेटमेंट पी क्यू आर। तो हम सबसे पहले पी क्यू आर के लिए कॉलम फॉर्म करेंगे, फिर चेक करना है किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट पे क्या निगेशन अप्लाई किया है, हाँ किया है, आर पे निगेशन अप्लाई किया, उसके लिए एक सेपरेट कॉलम फॉर्म करना है। फिर हम चेक करेंगे ब्रैकेट, अब यहाँ पे ओनली वन ब्रैकेट है पी कंजंक्शन क्यू, उसके लिए एक कॉलम आएगा, और लास्ट में पी कंजंक्शन क्यू और निगेशन आर को कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव डिसजंक्शन, जो हमारा फाइनल आंसर है, उसके लिए एक लास्ट कॉलम हमें फॉर्म करना है। और जैसे हमने देखा था, जब थ्री स्टेटमेंट होता है तो एंट्री क्या होगा, पी में एंट्री क्या होगा, टी टी एफ 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 एफ। क्यू में एंट्री क्या होगा, टी टी एफ एफ
टी टी एफ एफ, और आर में एंट्री क्या होगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन आर, आर का निगेशन। तो टी का निगेशन होगा एफ, जहां पे भी टी है वहां पे उसका निगेशन राइट डाउन कर दो, एफ टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ। ओके, और एफ का निगेशन होगा टी, ओके। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी कंजंक्शन क्यू। एज ऑल ऑफ यू नो दैट फॉर कंजंक्शन इफ बोथ द स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू टी देन इट इज टी, अदरवाइज एफ। ओके, तो चेक करो कौन से, कोई भी रो ऐसा है क्या जिसमें दोनों भी स्टेटमेंट टी होगा। और इसके लिए हमें कौन कौन सा कॉलम कंसीडर करना है, कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकंड। ओके, फर्स्ट रो में दोनों भी टी है, यहाँ पे टी राइट डाउन कर देना है। सेकेंड रो में भी दोनों भी टी है, यहाँ पे टी राइट डाउन करना है। थर्ड रो नहीं है, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स, सेवेंथ, एट, बाकी किसी भी रो में दोनों भी स्टेटमेंट टी नहीं है, तो वहां पे क्या आएगा, फॉल्स, मीन्स एफ। ओके, लास्ट फाइनल कॉलम पी कंजक्शन क्यों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसे हमें किसके साथ में कंबाइन करना है, निगेशन आर के साथ में, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव डिसजंक्शन। मीन्स हमें कौन कौन सा कॉलम कंसीडर करना है, कॉलम नंबर फिफ्थ एंड कॉलम नंबर फोर्थ। ओके, कॉलम नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ, और उन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज करना है, डिसजंक्शन। एंड एज वी नो दैट फॉर डिसजंक्शन इफ बोथ द स्टेटमेंट हैव truth value f then it is f, otherwise it becomes t, means true। ओके, तो फर्स्ट रो में दोनों भी f नहीं है, सेकेंड रो में भी दोनों f नहीं है, थर्ड रो में दोनों भी स्टेटमेंट f है। ओके, देन फोर्थ रो में दोनों भी स्टेटमेंट f नहीं है, हाँ फिफ्थ रो में दोनों भी स्टेटमेंट f है। सिमिलरली सेवेंथ रो में दोनों भी स्टेटमेंट एफ है, तो वहां पे भी एफ आएगा। ओके, ऑल अदर एंट्रीज हमें क्या राइट डाउन करना है, टी। हम डिसजंक्शन में टी कब राइट डाउन करते हैं, कब हम राइट डाउन करते हैं टी डिसजंक्शन में, जब दोनों भी स्टेटमेंट टी नहीं होगा। ओके, तो कंजंक्शन के लिए ध्यान में रखना है, जब दोनों भी ट्रू होगा तो हमें ट्रू लिखना है। ओके, और डिसजंक्शन के लिए जब दोनों भी फॉल्स होगा तब हमें फॉल्स लिखना है। इन नेक्स्ट वीडियो we will learn concept of tautology, contradiction and contingency, and also prove logical equivalence by using truth table.